Chalo, okay, we will start. We were on the point of discharge of contracts on the yesterday's lecture. Okay, what we have seen is that there are different modes of the discharge of contract. But before that, first of all, we have seen what is meant by the discharge of contract. Okay, did you remember? End of the contractual obligation is considered as the discharge of a contract. Now, discharge of contract may be made by the different modes. Number one, discharge by performance, in which the parties fulfill their obligations, so contractual obligation comes to an end. Discharge by performance may be of a two type. Okay, number one, actual performance, and number two, attempted performance. In actual performance, when both the parties perform their respective role, A paid the money, B painted the picture, contract is said to be discharged by actual performance. Okay, and in attempted performance, the promisor is ready and willing to his part, but the promisor is not accepting the performance from the side of promisor, the contract will be discharged. Okay, so if A is willing and ready to paint the picture, but B is not accepting the performance, A side the contract will be said to be discharged. Okay, so actual performance and attempted performance. Number two, discharge by mutual agreement with the consent of both the parties when rescission. With the consent of both the parties. When novation takes place, matlab cancellation of old contract and creation of new one. Then when rescission takes place, means cancellation of old contract. Alteration takes place, means only change in the terms of a contract. Or remission takes place, means agreeing to take lesser than what has been agreed. And waiver takes place, that is leaving the performance, that all are considered to be discharged by mutual agreement. Okay, then we have gone through the discharge by impossibility of performance. Okay, when the supervening impossibility, that is post contractual impossibility arises, in that case also the contract get discharged. Okay, वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बोलो डिस्चार्ज हो जाएगा वहाँ पे. जैसे कि एग्जांपल फॉर्म में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, देखो वहाँ पे वी हैव डिस्कस्ड इन द एग्जांपल फॉर्म अनफोर्सिन चेंज ऑफ लॉ, अचानक से लॉ चेंज हो गया, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं हो रहा है. या डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना वो चीज ही नहीं रही, तो इसकी वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है वहां पे, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है. देन नेक्स्ट वन, जो एक स्टेट ऑफ थिंग हमें लगता है कि हमेशा ऐसी रहेगी बट वो वैसी नहीं रहती है, नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन एकरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग, एंड डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर. इन सारे सर्कमस्टेंसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट पहले परफॉर्म करने के लिए पॉसिबल था वो परफॉर्म करने के लिए पॉसिबल नहीं है, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बोलो डिस्चार्ज वहां पे हो जाएगा. ओके, देन फोर्थ पॉइंट क्या हो जाता है, देखो डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. डिस्चार्ज क्या हो जाएगा वहां पे, लैप्स ऑफ टाइम. आपको बताया था इंडिया में इंडियन लिमिटेशन एक्ट है, जिसमें टाइम लिमिट दिया हुआ है हर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का, और विद इन दैट टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा. जैसे एग्जांपल फॉर्म में हमने देखा टाइम बाय डेट, किसी भी डेट को ड्यू डेट से 3 साल के अंदर अंदर आपको सूट फाइल करके रिकवर करना पड़ेगा. अगर आप ड्यू डेट से 3 साल के अंदर अंदर सूट फाइल नहीं करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे क्या हो जाएगा, बोलो डिस्चार्ज हो जाएगा. देन हमने क्या डिस्कस किया था, याद है, डिस्चार्ज मे बी बाय वेवर और रेमिटेंस ऑफ परफॉर्मेंस. आपको ऑलरेडी समझाया. वेवर या रेमिटेंस का मीनिंग क्या हो गया, बोलो अगर आप जितना एग्रीड है उससे कम लेने के लिए एग्री करते हो, जो लोन आपको लेना है उसका टाइम लिमिट एक्सटेंड करके देते हो, या फिर जिस फॉर्म में आपको वो पेमेंट लेना है उससे किसी और इंस्टेड और सेटिस्फेक्शन लेके डिस्चार्ज देते हो, तो वहां पे वेवर या रेमिटेंस आता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे भी डिस्चार्ज हो जाएगा. जैसे मॉड्यूल में एग्जांपल है कि 5 लाख रुपए के कर्जे को 1 लाख रुपए में सेटल कर लिया था और 5 लाख के लिए पूरा डिस्चार्ज दे दिया था, सो इट वाज कंसीडर्ड एज अ डिस्चार्ज बाय रेमिशन. देन हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ द नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिसर टू अफोर्ड द प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस. एक पार्टी दैट इज क्या आ रहा है वहां पे, प्रॉमिसर अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए रेडी है, लेकिन प्रॉमिसरी जो परफॉर्मेंस करने के लिए रिक्वायर्ड फैसिलिटीज प्रॉमिसर को देना जरूरी है वो नहीं दे रहा है, तो प्रॉमिसर के साइड से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा. रिमेंबर दैट एग्जांपल ऑफ हमने वुड डिस्कस किया था वहां पे, इट वाज डिसाइडेड कि प्रॉमिसर इज गोइंग टू बिल्ड द हाउस विद द प्रॉमिसरी. प्रॉमिसर के लिए एक हाउस बिल्ड करेगा, बट उसके लिए प्रॉमिसरी उसको टिम्बर
देगा। हाँ, तो अगर प्रॉमिसरी ने टिम्बर ही नहीं दिया तो प्रॉमिसर परफॉर्मेंस कहाँ से करेगा वहां पे। हाँ, या फिर और एक एग्जांपल था, देखो प्रॉमिसर को प्रॉमिसरी का घर रिपेयर करवाना है। हाँ, लेकिन प्रॉमिसरी अगर उसको बताएगा ही नहीं कि कहाँ पे घर रिपेयर करना है तो प्रॉमिसर कहाँ से करेगा। तो प्रॉमिसर अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए रेडी है, बट प्रॉमिसरी उसको जो रीजनेबल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है वो नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बोलो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक, अब 2 पॉइंट इससे बचे थे, उसका अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग, मर्जर ऑफ द राइट्स पहले खत्म करते हैं। हाँ, एंड फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लास्ट पॉइंट लेते हैं, क्योंकि बराबर अगला चैप्टर है पूरा हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। हाँ, सो नेक्स्ट मोड बाय व्हिच कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज इज मर्जर ऑफ राइट्स। हाँ, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। पहले आपको ना इसके छोटा सा लॉ बताती हूँ क्या है। हाँ, लॉ क्या कहता है बता, जब किसी हाँ सुपेरियर राइट में कोई इंफेरियर राइट मर्ज हो जाता है, हाँ, तो इंफेरियर राइट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। किसी सुपेरियर राइट में कोई इंफेरियर राइट मर्ज हो जाता है तो इंफेरियर राइट वहां पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बोलो डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे आपको एग्जांपल फॉर्म में बताती हूँ। हाँ, वी विल टेक वन पर्टिकुलर एग्जांपल फॉर दिस। हाँ, देखो क्या हो गया, कशिश हाँ इज अ लीजी, लीजी मतलब किराएदार। व्यक्ति का शॉप है ओनरशिप का। हाँ, व्यक्ति के मालिकाना हक का एक शॉप है। हाँ, और जो शॉप कशिश ने किराए पे लिया हुआ है। हाँ, फ्रॉम ऑलमोस्ट लास्ट 10 years अच्छे से कशिश वो शॉप क्या हो रहा है वहां पे व्यक्ति के दुकान में अच्छे से चला रहे। गॉट द पॉइंट। हाँ, तो कशिश किराएदार है और व्यक्ति मकान शॉप के मालिक है वहां पे। ठीक है, आया ध्यान में आपको यहाँ पे। हाँ, आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। देखो हाँ क्या हो गया, देखो जो कशिश है ना यहाँ पे, हाँ इनका बहुत दुकान इस पर्टिकुलर जगह पे अच्छे से चलता है कशिश का। हाँ, तो क्या हो जाता है, इन द मेन टाइम व्यक्ति को पैसों की जरूरत है, तो व्यक्ति वांट टू सेल दिस पर्टिकुलर शॉप। व्यक्ति को ये शॉप क्या करना था, वहां पे बेचना था। हाँ, तो ऑफकोर्स ना व्यक्ति ने पहला प्रेफरेंस किसको देना चाहा, वहां पे कशिश को देना चाहा। तो व्यक्ति ने कशिश को पूछा कि कशिश वुड यू लाइक टू परचेज दिस पर्टिकुलर हाउस, था तो शॉप। तो कशिश सेड ओके आई वुड लाइक टू परचेज दिस शॉप। तो कशिश ने प्रॉपर पेमेंट वगैरह करके रजिस्ट्रेशन करके व्यक्ति से वो शॉप क्या किया, बोलो खरीद लिया यहाँ पे। तो देखो पहला वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था ना कशिश और व्यक्ति के बीच में, वो क्या था, बोलो व्यक्ति वाज मकान मालिक, कशिश वाज किराएदार। सो लीजी एंड लीजर। हाँ, लीजर मतलब मकान मालिक और लीजी मतलब किराएदार। हाँ, और अब वही रिश्ता किस चीज में बदल गया, बोलो व्यक्ति अब क्या हो गया वहां पे सेलर और कशिश क्या बन गया, बोलो बायर। हाँ, और कशिश घर के क्या बन गए, मालिक। तो क्या अभी भी कशिश को व्यक्ति को रेंट देना पड़ेगा या वो लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होगा? ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव एन आंसर कि वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बोलो लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ, मकान मालिक बड़ा या किराएदार बड़ा? ऑफ कोर्स किराएदार से अब आप क्या बन चुके हो, कशिश क्या बन चुके, मकान मालिक बन चुके, तो किराएदार वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ, दिस इज कंसिडर्ड एज अ मर्जर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। गेटिंग द पॉइंट? when two inferior sorry yeah when an inferior right merge into the superior right, यहाँ पे inferior right क्या था, बोलो लीजी, और superior right क्या बोलो वहां पे ओनर ऑफ द हाउस। हाँ, तो inferior right किसमें merge हो गया, बोलो superior right में merge हो गया। तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली inferior right मतलब लीजी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था, लीज वाला किराए वाला कॉन्ट्रैक्ट, वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया। हाँ, सो व्हाट द पॉइंट, थोड़ा सा मॉडल लैंग्वेज बात करते हैं। हाँ, समटाइम inferior right and superior right coincide and meet in one and the same person. In such a case, the inferior right merge into the superior right. किराएदार मकान मालिक बन गया। हाँ, और ऑन मर्जर किराएदार वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, डिस्चार्ज हो गया। द inferior right vanish, चला गया and are not required to be enforced. अब उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है वहां पे। हाँ, so got the point. Discharge of contract by performance, by mutual agreement, by lapse of time, by impossibility, by operation of the law, by waiver or remittance, by neglect of promise to afford reasonable facilities to the promisor, by merger of the right, and the last one we are going to discuss is discharge by the breach of contract. हाँ, अगर one of the party to contract अपना पार्ट परफॉर्म करने से ब्रीच कर जाती है। हाँ, क्या कर जाती है, ब्रीच कर जाती है। हाँ, तो जो इनोसेंट पार्टी है जो अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए रेडी है, उसके साइड से कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बोलो डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ, तो दीज आर ऑल द मोड्स इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट में गेट डिस्चार्ज। हाँ, यहाँ पे हमारा एक्चुअली यूनिट नंबर 4 जो है वो क्या हो जाता है, बोलो एंड हो जाता है। हाँ, नाउ योर यूनिट नंबर 5 इज
starting with the last point, one of the way of the discharge of the contract is a breach of contract. One of the way of the discharge of contract क्या था बोलो? Breach of contract. और अगर one of the party to contract breach कर देती है तो उसके लिए क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, वो रेमेडीज भी हमें क्या करने हैं यहाँ पे डिस्कस करने हैं. सो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर क्या हो गया बोलो? 4 एंड हो गया. एंड वी आर स्टार्टिंग विद अ फ्रेश यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 5 with a fresh point, breach of contract and the remedies there for वहाँ पे.